Hello students, are you here to my voice? Yes, sir. Okay, and you are also able to see the screen? Yes, sir. Okay, so let's start our today's lecture. Last lecture was taken by Praveen sir. Can any one of you tell me what he has covered? So he has revised the old topic, old Okay, questions which we have okay, done. okay, so nothing new he has covered. Yes, sir. Okay, so I will start from the point where we have last left. On last lecture, we have discussed these 4 FAs. FA that accepts all the words ending with the letter A over the alphabet AB. Okay, so ending with the letter A, this was our problem. This we have done through the success path as well as mutually exclusive states. Okay, so I'm just going to that slide. So this was the slide which we were discussing. So I'm just changing the color. Okay. So first we have discussed it using the success path. Okay. And then we have made it through the mutually exclusive states. Both designs, you can see that these two board designs are similar. Okay, so we have practiced both success path and mutually exclusive states. There are certain problems which you can make by both the concepts. There are certain problems in which only one concept you can apply, other you cannot apply. Okay, so as per the problem, this you have to look at what you have to use, whether you want to use mutually exclusive state or success path. My recommendation was always that you should first try mutually exclusive states. Okay, because this is easy one. If you are able to find the mutually exclusive states, you in advance know how many total number of states will be there in the FA. Only thing is just you have to complete the transitions between these states. Okay, if you are not able to find the mutually exclusive state, then you should try the success path. Success path is our second choice because when we draw a success path, we do not know how many other states are going to be added into the FA. So this was the concept, and then we have gone for the FA that accepts all strings having the odd number of A's over A and B. Here again we have practiced the mutually exclusive paths. We have seen that there are only two possibilities, that either there are the even number of states, there are the even number of A's, or there are the odd number of A's. So we in advance know that there will be two states in this FA, and then we have found that out of these two, which one will be the start state, which one will be the final state, and then as per the problem we have completed the transitions of the FA. And then we have also taken its complement language. So our language was all strings having odd number of A's. Then we have made, if suppose we have to make the FA corresponding to the language which is complement of it, that is containing the even number of A's. Okay, so then we can see that we have again seen that for complement languages we will have the similar design. You can see that the same design we are repeating here. Okay, and the only difference is that the states which are non-final states in this FA will be the final states in this particular FA, and the states which are final states in the original FA will be the non-final state in this FA, which we are drawing for, which we are designing, or which we are making for complement of the language. So again we have seen how we can design the FAs corresponding to a complement of a language if we already know how to design the FA corresponding to that particular language. Then we have seen the two FAs, FA that accepts all strings having at least one A, and another FA was that accepts all strings having exactly one A. These are two similar looking languages, and we have seen that for both the languages the success path is same. Success path is same, but actual final FAs are
different. So we have we have learned that same success path are possible for similar looking problems, but final FAs will be different as the remaining transitions other than the success path are to be completed as per the language for which we are making the FA. Okay, so we'll just go to that slide and look at. You can see that our first problem was FA that accepts all strings having the at least one A. So here also we have made the success path. Start state, then A is leading us to the success. And in another problem, FA that accepts all strings having exactly one A, we are also having the same success path from starting state. One A leads us to the success. But here you can see that all other transitions does not add any other language in the first problem. But in the second problem, the second A leads us to the another state, which is a fail state. Okay, so we have to complete the remaining transitions as per the problem. So for similar looking problems, we may have the same success path, but when we analyze the problem and as per the problem we draw the other transitions, then we will find what new states are to be added there, what new transitions will be added there. So ultimately FAs will be different. You can look at that. These two FAs are different as the problem is different. Initial success path in both the problems were same. So this was all which we have discussed up till the last our last discussion. Now we'll move forward with the design of FAs. We will take 3-4 more examples here, and my today's lecture will be the last lecture in the discussion of the design of FAs. I hope that the problem set which I have given you, the question bank which I have given you, you are practicing those questions as well, and you may be having some difficulties in those questions. Is it, class? Are you practicing those questions? Yes, sir. Okay, so and I have told you that whatsoever problem you are having in those questions, you can WhatsApp me those problems and I will be responding, I will be answering you. If it is required, we can talk on phone as well to discuss the problem. Okay, so though it will be difficult for me, but I will try to answer each and every answer on the WhatsApp. Okay, because live discussion is not that much important. Even then, yes, tomorrow we do not have any lecture, but I will be scheduling a session again in the evening at some time, either 4 o'clock or 5 o'clock. If you wish, you can join that session and discuss your problems. Okay, but for that it is first required that you try those problems. Okay, joining tomorrow's session will not be compulsory for you. I will not be taking attendance in that session. That is only a discussion session. If you have any problem, you can join that session, you can discuss your problem, and if you wish what others are discussing, you can just join to listen that. Okay, so that session I will be holding tomorrow. So this was all I wanted to discuss. Now I will discuss certain more problems. No new concept we will be looking at, but we will be practicing all those concepts in a little bit complex manner, which we have discussed up till now. Okay, so I am taking the first problem, that FA that accepts all these strings containing double A. I hope many of you have already made this problem. So just can somebody tell me what will be the regular expression for this particular language? Someone. Regular B expression. star. Yes, A A plus plus B B star. star. A plus B star and then Double A. double A A plus plus B star. B star. Yes, very correct. It is a simple one. Simplest, simple thing. What we need for the success, we need a double A. So two continuous A's we need. When we are writing two A's, we have three positions where we can insert. Before both the A's, after both the A's, and between both the A's. But in between we cannot insert because we need two continuous A's. So the possibility that we can insert in between is vanished. That possibility is not there. Okay, so either we can insert at the starting of the two, before the two A's, or after the
two continuous A's. And what can come before and after these two continuous A's? Anything can come, because for success I only need somewhere double A is there. So somewhere two continuous A's comes, then it will give me the success. So that's why I can simply write this regular expression. It is simple. Okay. And now I will be looking at the FA for this particular language. So as this regular expression, the way we have designed the regular expression simply suggests us that we should use the success path. For success, what we need? Double A, two continuous A's. So from the start state, I will start, I will record one A and move to a state. So when I am at this state, it simply means that I have read one A. Then from this state, if I read one more A, then it will give me the success. It will give me the success. So that's why this state will be the final state. So this is the state where I will reach when I will be reading two continuous A's. So you can understand the responsibility of these states. Start state. This is the state which tell me the last letter read is in A. Before it, I haven't read A. It is either B or I haven't read anything. Okay. Then in this state, it simply holds all those strings in which we have just read two continuous A's. Okay, so this is the final state. The question is, when I reach to this success, is this success final or not? Means if I read further A's or B's, I have to stay here or I have to go somewhere else. So let us discuss it one by one. Suppose in this state, I read an A. Okay, I read an A. So if I read an A, so I have just read two A's, so it will be the third A, or I again read an A, so it will be the fourth A, and so on. Okay, it will be the fourth A, and so on. Okay, so but last two letters will remain, which we have read will always remain an A. So on A I will be staying here. On A I will be staying here. Is it? Similarly on B. Suppose I read an B. I read an B. So these two A's I have read. Even if I read an B, so these two A has already come, and I want these two A's in somewhere in my string. So no matter after it either A come or B comes, this is the success, and this success nobody can take from me. So that's why on B as well I will loop here. So double A, AB, so I have completed the transitions of this particular state. Then I look at other states, suppose start state. If I read an A, I will move over the success path. Is it okay? Because I have read one A, so I will reach to a state which represents that I have just read one A. But suppose I do not read an A, I read an B. So where I should remain? I should remain at this particular start state so that I do not go away from the success path, because any number of B's I read, whenever I read an A, I have to reach to a state which represents that I have just read one A. So to reach that state I have this path from this start state, so that's why on B I will stay over this particular start state. So whenever up till I get in B, I will remain at this state. जैसे ही मेरे को एक A मिलेगा, I will move over the success path. Is it? So I have completed the transitions for the start state on B as well as on A. Now I am on this particular state. So being in this particular state means I have just read one A. Okay. If I read one more A, then it is the success. But if I read an B, where I should move? Where I should move? I should stay on this state? No. Because if I will stay on this particular state, so my last letter read will be B, while the responsibility of this state is to hold those strings in which I have just read one A. So if I will read an B, I have to move away from this state. I cannot move on over the success path. I cannot stay on this state. I have to move away. And now question is whether I should move on some existing state or some new state has to be created. So if I am reading a B, so for success what I need? I again need two continuous A's. Okay, from where I am getting two continuous A's? So this is the start state from where I can find two continuous A's to reach to the success. Okay, so if I read an B, so for success again I need
two continuous A's, and those two continuous A's I can get from the start state. So that's why I will be moving to the start state when I am reading a B in this particular state. So this for this state also I have completed the transitions on A as well as on B, and this is the final state for which I have already drawn the transitions on A and B. I will loop here. So this is the simple FA which is which will accept all those words which are containing two continuous A's. I hope it is clear to everyone. Class, is it clear? Can we move to? Okay. So now, Yes, sir. so now the second problem is also the related one. FA that accepts all strings containing double A or double B. You can easily write a regular expression for it because we know the regular expression for all these strings containing double A. So what will be the regular expression for this? Just tell me, class, what will be the regular expression for it? Double A plus double B. Yes, yes, yes. So A plus B asterisk, double A plus double B, A plus B asterisk. This will be the regular expression. If you look at this regular expression, it is almost similar of this. The only thing is, यहाँ हमें केवल डबल ए से सक्सेस मिल सकती थी, यहाँ हमें डबल ए से भी सक्सेस मिल सकती है और डबल बी से भी सक्सेस मिल सकती है. So for success, what you need? You either need a double A or double B, and whatsoever you are using for the success, whether double A or double B, what you can use before it, you can use A plus B asterisk, means before double A anything can come, it doesn't matter. After this double A anything comes, it doesn't matter. Similarly, if it is double B which is giving you the success, then before this double B anything can come, and after this double B anything can come. So that's why this is the regular expression, A plus B asterisk, double A plus double B, A plus B asterisk. If you wish, you can also write this regular expression like this, A plus B asterisk double A plus B asterisk, and then plus again A plus B asterisk double B and then A plus B asterisk. Both regular expressions are equivalent and same. Okay, so यहाँ आप क्या declare कर रहे हैं कि if a double A comes somewhere, that will give you the success, or if a double B comes somewhere, that will also give you the success. So both these two regular expressions are equivalent. Is it clear to everyone? Yes, sir. Okay. Now we have to make an FA corresponding to it. Okay. Again, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ कि सक्सेस पाथ आपको जो है इसमें आसान पड़ेगा. तो जैसे सक्सेस पाथ से बना था वैसे ही सक्सेस पाथ से बनाएंगे. बस फर्क क्या होगा, यहाँ बजाय एक के कितने सक्सेस पाथ होंगे, दो सक्सेस पाथ होंगे. Is it? So we'll start from the start state. We'll draw first success path. So on A we will reach here, and on double A we will reach to the success. Is it? Similarly, if we get two continuous B's, that will also lead us to the success. So on single B we will be somewhere else. On single B we cannot be here, because if I write A comma B here, okay, so A's and B's will get mixed. Okay, so I have to keep both the success paths separate. So that's why on B I am not moving on the already existing success path. I am moving or I am drawing a different success path. Now this different success path on the second B I will reach to the success. So whether I should reach to the same success state or some different success state. So as we have already discussed one problem which was containing triple A or triple B. Okay, so that there also we have discussed that in such problems we can share the success path. Why we can share the success path? Because we get the success either through double A or through double B. But once we reach to the success, then that success is final. Okay, so in both the cases we are not going to leave that state, so that's why we can share that particular state. If you have any doubt, you can draw two different success paths. So on A you write a success state here, on B and then B you write or you draw a different success state here. Okay, so here we can share, so that's why I have
made like this, and then because I have already discussed that once we reach the success, after that anything comes, it doesn't matter. Once we have got either double A or double B and reach to the success, nobody can take this success away from us. So after it, whether A comes, B comes, or any string over A's and B's comes, we are not going to leave this particular state. So that's why there will be a self loop of A, B here. Is it? It is clear? Yes, sir. So there are two success paths, and once we reach the success, we are not going to leave it. Now we complete the other transitions. Okay. So from start state on A, we will move over the success path. On B, we will move over the another success path. Okay. So the transitions for this state are complete. Now we'll look at this particular state. Okay, where we reach after reading 1A. So being in this state means we have just read 1A. Okay, we have just read 1A. If we get a second A, then it is the success. If we get an B, so where we should move? Where we should move? Whether we have to stay over this state? No. If we stay over this state, we cannot ensure two continuous A's, because we have to ensure two continuous A's, so nothing can come in between. Okay. So on B, we have to move away from this success path. So where we should move? We are having another success path, and we are having a state which is holding those strings where we have just read 1B. Okay, so this is the state. So on B, we will be moving here. So means what we are doing, we are leaving the A path. We are leaving the A path and we are joining the B path. Okay, so जैसे ही मुझे A path पे सक्सेस से पहले B मिलता है, इसका मतलब अब डबल A तो मेरे को नहीं मिलने जा रहा, हो सकता है डबल B मिलने जा रहा हो. So that's why I will join the B path where I will on the state which is responsible for holding these strings, where we have just read 1B. So we will come to this particular state. In this state, if a B comes, so there are two continuous B's. Either we are coming from this path, from the start state to this state, and then this state to the final state, or we are moving on A and then after reading 1B we are moving to this state. So maybe the path is this or this, but if a second B comes, we will move to the success. But if a second B does not come, there comes an A, so we will move to the A path. Okay, so means we were pursuing B path, चाहे हम इस रास्ते से आए हों या इस रास्ते से आए हों, we were pursuing B path. तो अगर B path पे सक्सेस की तरफ बढ़ पा रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं बढ़ पा रहे हैं, A मिला तो हो सकता है A path के थ्रू सक्सेस मिले. तो अगेन हमने A path को कहाँ ज्वाइन किया, जहां एक A रीड करने की बात थी. तो अब हम इस स्टेट पर जब भी होंगे, we will be reading just one A, चाहे वो हमने इस स्टेट से रीड किया हो, स्टार्ट स्टेट से, चाहे इस बी वाली स्टेट से जाकर के रीड किया हो. सो जब भी हम इस स्टेट पे होंगे, वी हैव जस्ट रेड 1A, और उससे पहला लेटर जो है वो A नहीं है, ये गारंटी है. चाहे उससे पहले हमने कुछ भी नहीं रीड किया, चाहे उससे पहले हम B रीड करके फिर A पर आ रहे थे. इज इट? सो ये हमने कंप्लीट किया एंड अगेन हमें सेकंड A मिला, तो हम सक्सेस पे पहुंच गए. तो अब देखिए इस पर्टिकुलर स्टेट के A ट्रांजिशन हमें सक्सेस पाथ पे आगे ले जा रहा है, B ट्रांजिशन हमें B पाथ पे स्विच करा रहा है. इसी तो यानी दोनों ट्रांजिशन कंप्लीट है. इसी तरह से इस स्टेट के भी अगर B हमें मिल रहा है तो B पाथ के थ्रू हमें सक्सेस मिल रही है, अदरवाइज हम A पाथ पे स्विच करें. तो ऑन A एंड B बोथ ट्रांजिशंस आर गिवन हियर. और इस स्टेट के सारे ट्रांजिशन हमारे कंप्लीट है. तो हमारे हर स्टेट के A और B दोनों के ट्रांजिशन तो और FA इज कंप्लीट. आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर टू यू. Yes, sir. These two were a bit simple examples. Okay, now we'll move to another problem in which we have to design an FA that accept all words that have different first and last letters. So first of all, what will be the language? Language will be containing all those words which start, suppose it start with an A, then it should end with an B. Different first and last letter. Okay, if it is starting with a B, then it should end with an A. So meaning thereby there will be two success paths. Okay, so now can you tell me the regular expression for this FA? I think problem is clear. If word is starting with A, it should end with B. If word is starting with B, it should end with an A. So what will be the regular expression?
ए से स्टार्ट कर रहा है सपोज, तो ए तो आएगा ही आएगा, इज इट? एंड किससे करना है? बी से करना है, यानी ऑल दोज वर्ड्स विच आर स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग विद बी। इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन बता सकते हैं, स्टार्टिंग विद A asterisk and B. ए A and then A plus B asterisk A and then plus B. B asterisk B. So all words starting with A and ending with B. Similarly, all words starting with B and ending with A. So means it is another possibility. So जैसी दूसरी possibility है क्या आएगा? Plus. Okay. So all words starting with B and ending with A. So now similarly you can write B, A plus B asterisk A. Is it or not? इसके अलावा और कोई possibility है? अगर word A से start हुआ तो B से फिनिश होगा, अगर B से स्टार्ट हुआ तो A से फिनिश होगा, और इन दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी होगी, या तो ये पॉसिबिलिटी होगी या फिर ये वाली पॉसिबिलिटी होगी। इज इट क्लियर? सो रेगुलर एक्सप्रेशन इज क्लियर टू एवरीवन? क्लास? यस सर। ओके, सो नाउ वी हैव टू मेक एन FA corresponding to it. सो जैसा हमें दिखाई दे रहा है कि देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, और स्टार्टिंग विद A एंडिंग विद B, ये हमें किससे आसान पड़ेगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेट से या सक्सेस पाथ से? व्हाट इज योर ओपिनियन? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेट। कैसे कैसे कौन सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेट आप देख रहे हैं इसमें? स्टार्टिंग विद बी और एंडिंग विद बी। देखिए, वर्ड ए से स्टार्ट कर सकता है और बी से भी स्टार्ट कर सकता है, यानी ए अभी किसी से भी स्टार्ट कर सकता है, हमें नहीं पता। इज इट और नॉट? क्लियर है ना? क्लियर है कि नहीं? Yes, वर्ड ए से भी स्टार्ट कर सकता है, बी से भी। सिमिलरली इट कैन एंड विद बी और इट कैन एंड विद ए, यानी कि ए से भी एंड कर सकता है, बी से भी एंड कर सकता है। इज इट? बस फर्क क्या है कि अगर ए से स्टार्ट कर रहा है तो बी से एंड करेगा, और बी से स्टार्ट कर रहा है तो ए से एंड करेगा। लेकिन इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेट कहीं नहीं देख पा रहा, मुझे नहीं दिखाई दे रही, आपको कैसे दिखाई दे रही मुझे नहीं पता, बट इसमें कहीं भी मुझे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेट दिखाई दे रही। सक्सेस पाथ जरूर दिखाई दे रहे हैं, दो सक्सेस पाथ दिखाई दे रहे हैं मुझे। एक तो कि ए से शुरुआत हो और बी से खत्म हो, मीन्स स्टार्ट स्टेट से मेरा पहला ट्रांजिशन क्या होना चाहिए? ए पर, और लास्ट ट्रांजिशन क्या होना चाहिए? बी पे, जो मुझे सक्सेस पे ले जा रहा है। इज इट? इसी तरह से दूसरा सक्सेस पाथ मुझे क्या कह रहा है कि अगर मैं बी से स्टार्ट करूं, यानी स्टार्ट स्टेट का पहला ट्रांजिशन किस पे होना चाहिए? बी पे होना चाहिए, और लास्ट ट्रांजिशन किस पे होना चाहिए? ए पे होना चाहिए। तो चलिए पहले पहली पॉसिबिलिटी बनाते हैं। दिस इज द स्टार्ट स्टेट। सपोज माय वर्ड हैज स्टार्टेड विद एन ए, so I have reached to this state. If my word has started with an A, it should end with an B. So I assume that suppose this is, I am getting a B after it, so I will be reaching to success, because the smallest word in this language will be AB. Is it or not? सबसे छोटा वर्ड जो होगा वो क्या होगा? AB होगा। इज इट? यानी कि A मिला, A से स्टार्ट हुआ और B से एंड हो गया, मैं सक्सेस पे पहुंच गया। दिस इज द स्मॉलेस्ट वर्ड। नॉर्मली अब जब भी आप देखते हैं तो जो सक्सेस पाथ्स हैं वो आपका जो भी स्मॉलेस्ट पॉसिबल वर्ड है उस लैंग्वेज में, उसको रिप्रेजेंट करता है। आप पुराने के कोई भी एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए, हमने जितने भी एग्जाम्पल अभी तक डिस्कस किए हैं, जो सक्सेस पाथ है दैट इज रिप्रेजेंटिंग और दैट रिप्रेजेंट्स द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वर्ड इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। ओके, सो एक सक्सेस पाथ तो हमारा ये हो गया कि स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग विद बी। Another success path will be starting with B and ending with A. So it is another path. So obvious सी बात है, B on B and then on A. It will be the final state. Okay. यानी कि दूसरा जो स्मॉलेस्ट वर्ड होगा लैंग्वेज में दैट विल बी BA। अगर मेरा वर्ड B से स्टार्ट हुआ है तो A से एंड करना चाहिए। अब आप देखिए, यहाँ मुझे नहीं पता कि एक बार फाइनल स्टेट पे पहुंचने के बाद मेरा क्या स्टेटस होगा, तो मुझे डाउट था, तो मैंने यहाँ फाइनल स्टेट मर्ज नहीं किए हैं। मेरा आपको वापस फिर सजेशन है, जैसे AA वाला था, BBB वाला था, उसमें भी अगर आपको डाउट है तो आप फाइनल स्टेट शेयर मत करिए, एक स्टेट ही तो बढ़ेगी, लेकिन आपका डिजाइन करेक्ट होगा। स्टेट शेयर तभी करिए जब आप एब्सोल्युटली श्योर हैं कि हाँ वहाँ आप स्टेट्स को शेयर कर सकते हैं। ओके, सो दीज टू सक्सेस पाथ्स आर क्लियर class? Yes, sir. Okay, now we try to complete the other transitions, the remaining transitions in this FA। देखिए, स्टार्ट स्टेट, पहला ट्रांजिशन ए पे,
और बी पर, ए और बी दोनों के ट्रांजिशन इसके मौजूद हैं, यानी कि इस स्टेट के ट्रांजिशन मेरे कंप्लीट हैं स्टार्ट स्टेट के। अब मैं इस स्टेट को देखता हूँ, ये वाली स्टेट, इस स्टेट को होने का मतलब क्या है, आई हैव, माई वर्ड हैज स्टार्टेड विद एन ए। इस स्टेट पे होने का क्या मतलब है, माई वर्ड हैज स्टार्टेड विद एन ए, तो मेरा बी से एंड होना चाहिए। तो अगर मुझे एक बी मिल रहा है सो आई शुड रीच टू द फाइनल स्टेट, जो मैं पहुंच भी रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर मुझे बी नहीं मिल रहा, ए मिल रहा है, तो क्या करना चाहिए, व्हाट इज योर ओपिनियन? ए मिल रहा है तो क्या, यस, सेल्फ लूप। सेल्फ, ए मिल रहा है तो मुझे वहीं स्टे करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ए मुझे सक्सेस पाथ पे आगे नहीं बढ़ाएगा, लेकिन ए मुझे सक्सेस पाथ से अवे जाने को भी नहीं कह रहा, इज इट? क्योंकि अगर ए आता है तो क्या मेरी स्टार्टिंग ए से हुई है ये फैक्ट बदल जाएगा ना, ये फैक्ट नहीं बदलेगा। सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू लीव दिस पर्टिकुलर स्टेट, माई वर्ड हैज स्टार्टेड विद एन ए। सो जब तक मुझे ए मिलता रहेगा मैं यहीं पे रहूंगा, क्योंकि वर्ड तो स्टिल मेरा स्टार्टेड ए से ही हुआ है, इज इट? अब अगर मुझे बी मिल रहा है और मेरा वर्ड यहाँ पे फिनिश हो गया, तो आई शुड बी एट द फाइनल स्टेट, क्योंकि मुझे इसे एक्सेप्ट कराना है, इज इट? सो दैट्स व्हाई आई एम ऑन द फाइनल स्टेट। तो जैसे ही बी मिलेगा मैं कहाँ मूव कर गया, फाइनल स्टेट पे मूव कर गया, इज इट? तो अगर यहाँ मेरा वर्ड फिनिश होता है तो मेरा वर्ड ए से स्टार्ट होगा और बी से फिनिश हो जाएगा। आप देखिए इस मिडिल वाली स्टेट के ए पे ट्रांजिशन है, बी पे ट्रांजिशन है, दोनों ट्रांजिशन कंप्लीट हो गए। अब आते हैं इस फाइनल स्टेट पर। इस फाइनल स्टेट में होने का मतलब क्या है कि आपका वर्ड ए से स्टार्ट हुआ है, पहली चीज तो, क्योंकि आप इस बात को फॉलो करें, आपका वर्ड किससे स्टार्ट हुआ, ए से स्टार्ट हुआ है, और जो लास्ट लेटर आपने रीड किया है दैट इज बी। अब अगर यहीं पे स्ट्रिंग फिनिश हो गया तो आपका स्ट्रिंग सक्सेसफुल होगा, क्योंकि ये फाइनल स्टेट है। लेकिन स्ट्रिंग यहीं पे फिनिश नहीं हुआ, स्ट्रिंग यहीं पे फिनिश नहीं हुआ, तो या तो आगे ए रीड करेंगे या बी रीड करेंगे। सपोज बी रीड करते हैं तो यहीं पे रुकना चाहिए या कहीं और जाना चाहिए? तो यही रुकना चाहिए। यहीं रुकना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगला बी रीड करके भी अगर यहीं पे वर्ड फिनिश होता है तब भी किससे एंड होगा, बी से एंड होगा। सो बी से एंड पे तो सक्सेस है, सो ऑन बी आई शुड नॉट लीव दी सक्सेस। इज इट क्लियर? लेकिन अगर ए आया, लेकिन अगर ए आया सो और मेरा वर्ड यहीं पे फिनिश होगा, तो किससे फिनिश होगा, ए से फिनिश होगा, इज इट? ए से फिनिश होने पे सक्सेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरा वर्ड ए से स्टार्ट हुआ है। इस पाथ को फॉलो कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, मेरा वर्ड ए से स्टार्ट हुआ है। तो अगर मुझे ए मिला तो मैं इस स्टेट पे नहीं रह सकता, मुझे इस स्टेट से अवे जाना पड़ेगा। सो अवे कहां जाऊं मैं, अवे कहां जाऊं मैं क्लास, अवे कहां जाऊं? तो पीछे वाली स्टेट पर। पीछे वाली स्टेट पे, वेरी गुड। पीछे वाली स्टेट पे क्यों आया मैं किसी नई स्टेट पे क्यों नहीं गया? क्योंकि ये ए मुझे इस सक्सेस से तो दूर ले जा रहा है, लेकिन ये मुझे सक्सेस पाथ से हटने के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि इस ए के बाद फर्दर मुझे बी मिल सकता है और वहां मेरा वर्ड एंड हो सकता है, इज इट? तो अगर मेरा वर्ड बी से एंड हो तो सक्सेसफुल होना चाहिए ना, तो मुझे उस स्टेट पे पहुंचना चाहिए जहां से मैं एक बी लेकर के वापस फाइनल स्टेट पर पहुंच सकूं। क्योंकि वापस इस ए के आने के बाद अगर मुझे एक बी मिल गया तो मुझे वापस सक्सेस मिल सकती है। सो मुझे एक बी से सक्सेस मिल सकती है, तो एक बी से सक्सेस मुझे कौन सी स्टेट से मिल रही है, इस वाली स्टेट से मिल रही है, इस स्टेट से। सो दैट्स व्हाई ऑन ए आई विल बी कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर स्टेट, इज इट? ओके। सो अब इस फाइनल स्टेट का बी पर भी ट्रांजिशन कंप्लीट हो गया, ए पर भी ट्रांजिशन कंप्लीट हो गया, ये पाथ कंप्लीट है आपका। इज इट ओके और नॉट? Yes, sir. Now similar analysis and similar thing we can do on this second path as well. Okay, now we will look at this path. अगर मेरे को एक बी मिला तो मैं इस पाथ पर आया, यानी कि इस वाली स्टेट पे आ गया। तो इस स्टेट पे होने का मतलब क्या है कि आई हैव जस्ट रेड वन बी। अगर मुझे फर्दर बीज मिले तो क्या करना चाहिए, आई विल स्टे ओवर दिस पर्टिकुलर स्टेट, क्योंकि जब तक मुझे बी मिलते रहेंगे आई विल स्टे हियर। जैसे ही मुझे एक ए मिलेगा मैं सक्सेस पे पहुंच जाऊंगा। अगर मेरा स्ट्रिंग यहाँ फिनिश होता है तो इट इज स्टार्टिंग विद बी एंड एंडिंग विद ए। इसी तरह से अगर मुझे फर्दर एज मिलते हैं तो आई विल स्टिक टू दिस स्टेट। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ भी मेरा स्ट्रिंग एंड हो गया तो मेरा स्ट्रिंग किससे एंड करेगा, मेरा स्ट्रिंग ए से एंड करेगा, जो कि रिक्वायर्ड है, क्योंकि बी से शुरू हुआ है तो ए से एंड होना चाहिए। अगर ए से एंड हो रहा है तो आई विल स्टिक टू दी सक्सेस। बट अगर ये मेरा बी से एंड, अगर अगर इस ए के बाद मेरे को बी मिल रहा है कहीं भी, तो ये मुझे इस सक्सेस को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वरना अगर वहीं पे स्ट्रिंग एंड हुआ तो बी से एंड हो जाएगा, तो आई कैन नॉट स्टे ऑन दी सक्सेस। सो आई विल मूव बैक टू ए स्टेट from where I can again reach to the success after reading 1A. So this is the state from where I take 1A and I can reach to the final state. So I will move back to this state. Is it? So in this manner I can make this particular FA. I hope it is clear to everyone.
class? Yes, sir. ओके, सो नाउ यू हैव सीन दैट सक्सेस पाथ में हमारे पास कई बार, अब देखिए इसमें मेरा कोई भी नई स्टेट इंट्रोड्यूस नहीं हुई, बट अगर मुझे कहीं सक्सेस पाथ को छोड़ के कोई सी नई उस पर जाना होता तो नई स्टेट भी इंट्रोड्यूस हो सकती है। जैसे एग्जैक्टली 1A वाले में अगर आप ध्यान करें अपने एफ को, तो सिंगल ए पे सक्सेस थी और अगला ए मेरे को कहाँ ले गया, फेल्योर पे। फेल्योर यानी कि सक्सेस पाथ में मैं कहीं भी नहीं स्टे कर सकता, तो दैट्स वाई मैं सक्सेस पाथ से ही अवे गया, तो दैट्स वाई मुझे एक नई स्टेट क्रिएट करनी पड़ी थी। ओके, तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। मल्टीपल सक्सेस पाथ हो सकते हैं, जैसे यहाँ भी आप देख रहे हैं कि आपके दो सक्सेस पाथ हैं, डिफरेंट सक्सेस पाथ हैं। इसके अलावा यहाँ आपने ये भी देखा, मेरे पास एक एग्जांपल था डबल ए डबल बी वाला, ठीक है। तो डबल ए डबल बी वाले में हमने देखा, हमने फाइनल स्टेट शेयर की थी, यहाँ हमने फाइनल स्टेट शेयर नहीं की। और आप अब इस पूरे एफ को बनाने के बाद देख सकते हैं कि हम फाइनल स्टेट्स को शेयर नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि इस स्टेट पे अगर इस पाथ के थ्रू सक्सेस मिली है, तो इस स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि बी वाले बी पे यहीं रहना और ए पे वापस जाना। इस स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ए पे यहीं रहना और बी पे वापस जाना। तो इन दोनों स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट है, इनके ट्रांजिशंस डिफरेंट है, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट शेयर देम, वी कैन नॉट मर्ज दीज टू स्टेट्स। ओके, तो यहाँ दो अलग अलग फाइनल स्टेट बनी रहेंगी, जबकि डबल ए डबल बी और ट्रिपल बी वाले एग्जाम्पल में हमारी फाइनल स्टेट्स क्या हो गई थी, शेयर हो गई थी। अगर वहां आप अलग अलग स्टेट्स भी, फाइनल स्टेट भी बनाते तो भी सही होता आपका डिजाइन। ठीक है, कैन वी मूव फॉरवर्ड? Yes, sir. Yes, sir. Now another problem which we are going to discuss is the language even. It is just a name which is given to the language as per the property of the language. Okay, what this language is? This language contains all words W such that W contains even number of A's and even number of B's. यानी कि उसमें नंबर ऑफ एज भी इवन होने चाहिए और नंबर ऑफ बीज भी इवन होने चाहिए। यानी कि A, B, B will be a word here. Okay. Similarly, AB, BA will be a word here. A, B, AB will be a word here. So similarly, all combination, whatsoever combinations you make, if the number of A's are even as well as number of B's are even, then that will be a word in this particular language. Okay. अब सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है इसका रेगुलर एक्सप्रेशन का। इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा डिफिकल्ट है। अब अगर आप इस लैंग्वेज की प्रॉपर्टी देखिए, नंबर ऑफ एज इवन है, नंबर ऑफ बीज भी इवन है, सो टोटल लेंथ जो वर्ड की है वो क्या होगी? वर्ड किससे बनेंगे? या तो एज से बनेंगे, एज और बीज के कॉम्बिनेशन से बनेंगे ना, और उसमें एज भी इवन है और बीज भी इवन है, तो टोटल वर्ड की लेंथ क्या होगी? Even ही होगी। इवन ही होगी। यानी कि इसमें कोई भी ऑड लेंथ का वर्ड पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि इसमें जो लेटर्स अपियर करेंगे वो दो दो के पेयर में अपियर करेंगे। ठीक है, दो दो के पेयर कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो डबल ए हो सकता है, एक डबल बी हो सकता है, एक ए बी हो सकता है और एक बी ए हो सकता है। ये चार पेयर हो सकते हैं। ठीक है, अब इन चार पेयर में जो दो पेयर हैं पहले वाले, डबल ए और डबल बी, ये तो क्या है, बैलेंस्ड है। यानी कि अगर ये पेयर कहीं भी अपेयर होता है तो नंबर ऑफ एज इवन ही रहेंगे। ये अगर पेयर कहीं अपेयर होता है तो नंबर ऑफ बीज इवन ही रहेंगे। लेकिन कहीं भी अगर ये तीसरा पेयर अपेयर हुआ ए बी, तो नंबर ऑफ एज भी ऑड हो जाएंगे और नंबर ऑफ बीज भी ऑड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इससे पहले इवन थे। इवन में आप इवन नंबर ऑफ एज में एक ए जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? ऑड नंबर ऑफ एज हो जाएंगे। सिमिलरली इवन नंबर ऑफ बीज में अगर आप एक बी जोड़ोगे तो क्या हो जाएंगे? ऑड नंबर ऑफ बीज हो जाएंगे। एंड सिमिलर सिचुएशन विल बी देयर फॉर दिस next one also, for BA also. Is it or not? Clear? Clear है कि नहीं? Yes, sir. Okay. So अब अगर हम इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं तो इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ ऐसी बनेगी, डबल ए प्लस डबल बी। अगर ये कहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इज इट? इसके बाद अगर कहीं पे ए बी आया तो अनबैलेंसिंग होगी। यहां तक तो ये ठीक था, ये भी ठीक था। ए बी आया तो अनबैलेंसिंग होगी। अब अनबैलेंसिंग होगी तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस कैसे होगा? कि एक ए और एक बी जरूर आए, एक ए और एक बी और आए। देखिए खाली ये मैंने यहाँ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि खाली ये लिखते वर्ड की लेंथ जो है वो ऑड हो सकती है, तो इसीलिए जो भी आएंगे यहाँ पेयर्स में आएंगे। इज इट? सो ए बी आए, इसको अब मुझे बैलेंस करना। अब बैलेंस करना है तो मैं इसमें एक पहले लिख देता हूँ, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ।
डबल ए डबल बी एस्ट्रिक एंड देन ए बी। इस तरह का कोई फैक्टर आएगा, एक ए बी आया तो ये ए बी कहीं बैलेंस होना है। सपोज मैं इस ए बी को ए बी से ही बैलेंस कर रहा हूं, मैं चाहूं तो इसे बी ए से भी बैलेंस कर सकता हूं, इज इट? क्योंकि मुझे तो क्या चाहिए, केवल एक मैचिंग ए और एक मैचिंग बी चाहिए। अब वो चाहे मुझे ए बी से मिले या बी ए से मिले, तो बैलेंसिंग तो ये हो गई यहाँ पर। लेकिन ये बैलेंसिंग इमीडिएट होगी ये जरूरी नहीं है। हो सकता है इस अनबैलेंस्ड ए के बैलेंसिंग के बीच में बहुत सारे और बैलेंस्ड फैक्टर आ जाएं। तो बैलेंस्ड फैक्टर कौन से हमारे, ए और डबल बी। तो डबल ए या डबल बी कितनी भी बार कितने भी नंबर में आ सकता है, आपका नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज बैलेंस्ड रहेंगे। इज इट और नॉट? क्लियर है? ये क्लियर हुआ कि नहीं बताइए? नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज, अगर डबल ए और डबल बी इसका एस्ट्रिक ले रहा हूं तो बैलेंस्ड रहेंगे। इससे नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज अगर पहले से इवन थे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस ए बी से ऑड हो रहा है तो इस ए बी से मैं लास्ट में जाकर के इसको बैलेंस कर रहा हूं। इज इट और नॉट? यस सर। ओके। Yes, sir. सिमिलरली वी कैन डू, अब जैसे मैंने इसको बताया था कि ए बी को ए बी से भी बैलेंस कर सकता हूँ, ए बी को मैं वापस डबल ए प्लस डबल बी एस्ट्रिक बी ए से भी बैलेंस कर सकता हूँ। इज इट? सो दैट इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी, दैट इज अनदर पॉसिबिलिटी। और जैसे ये पॉसिबिलिटीज, अब इसमें ए बी पहले आया और बाद में ए बी या बी आया। सिमिलरली यहाँ पे मेरा बी ए आ सकता है और यहाँ पे ए बी आ सकता है। इसी तरह से यहाँ बी ए आ सकता है और यहाँ बी ए आ सकता है। इज इट? तो ये चार कॉम्बिनेशन बनेंगे आपके। इज इट? तो ये डबल ए प्लस डबल बी एस्ट्रिक, यहाँ पे प्लस, इस पे भी मैं प्लस लगा देता हूँ, डबल ए प्लस डबल बी एस्ट्रिक एंड दिस वन। तो इस पूरे पे जब ब्रैकेट लगाता हूँ तो ये सारे इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। अब ये फैक्टर्स किसी भी ऑर्डर में किसी भी तरह से कितनी भी बार अपीयर कर सकते हैं। तो मैं एक स्टार इस पूरे ब्रैकेट के बाहर लगाऊंगा कि ये फैक्टर मेरे बार बार रिपीट हो सकते हैं। अब मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिख लूँ तो इट विल बी समथिंग लाइक डबल ए प्लस डबल बी। ये तो एज इट इज आया। उसके बाद मैंने क्या किया, प्लस ब्रैकेट में ए बी प्लस बी ए, इन ब्रैकेट में डबल ए प्लस डबल बी एस्ट्रिक और अगेन ए बी प्लस बी ए। इज इट? और दिस होल ब्रैकेट एंड इस होल ब्रैकेट पे एस्ट्रिक। सो दिस विल बी द final regular expression. Now you can understand how I have written this compact regular expression from this one. Is it? ये कैसे है, देखिए ए बी प्लस बी ए। अगर मैं यहाँ से ए बी लेता हूँ, बीच में ये फैक्टर आएगा पूरा और इधर से ए बी या बी ए कुछ भी आ सकता है। तो ए बी डबल ए प्लस डबल बी एस्ट्रिक ए बी आ सकता है, ए बी डबल ए प्लस डबल बी एस्ट्रिक देन बी ए आ सकता है। जैसे आप नॉर्मल मैथमेटिक्स में जो है अलजेब्रा में करते हैं उस वे में अगर आप देखें तो इससे आपके टोटल 4 टर्म्स बनेंगे। वो चारों टर्म्स मैंने कहाँ लिखे हुए हैं, ऊपर लिखे हुए हैं, वही 4 टर्म्स बनेंगे अगर आप इसको एक्सपेंड कर दें तो। इज इट क्लियर? सो दिस विल बी द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर दिस लैंग्वेज। सो इट इज अ बिट ट्रिकी वन, इट इज अ डिफिकल्ट वन ऑल्सो। ओके, आई होप बट कॉन्सेप्ट you will be able to understand on the basis of which I have made this regular expression. Is it clear to you? Yes, sir. Okay. Now we come to the FA corresponding to it. अब इसका रेगुलर एक्सप्रेशन तो बड़ा डिफिकल्ट था, बट इसका FA उतना ही सिंपल है। FA के लिए क्या है, अब यहाँ मुझे सक्सेस पाथ देखना है या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेट्स देखनी है। What you suggest or what comes to your mind? Someone? क्या इसमें कुछ सक्सेस पाथ जैसा पैटर्न दिखाई दे रहा है आपको? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेट्स कैसे? अब देखिए इसमें आपका कोई भी वर्ड W जो है वो 2 लेटर्स से मिलके बना है, A और B। अब नंबर ऑफ एज के लिए मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो इवन हो सकते हैं या फिर ऑड हो सकते हैं। इज इट? सिमिलरली इस B के लिए भी मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी हैं। नंबर ऑफ बीज कितने हो सकते हैं मेरे वर्ड में, या तो इवन हो सकते हैं या ऑड हो सकते हैं। और उसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, या तो इवन होंगे या ऑड होंगे। अब इनके टोटल 2 पॉसिबिलिटीज नंबर ऑफ एज के लिए, 2 पॉसिबिलिटीज नंबर ऑफ बीज के लिए, इनके कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं? टोटल 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं।
मैं दोबारा लिख रहा हूं ए और बी, एज और बीज। एज इवन हो सकते हैं, बीज भी इवन हो सकते हैं। एज इवन हो सकते हैं, बीज ऑड हो सकते हैं। एज ऑड हो सकते हैं, बीज इवन हो सकते हैं। एज ऑड हो सकते हैं, बीज भी ऑड हो सकते हैं। इज इट? इवन ऑड, ये 4 पॉसिबिलिटी में, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है कि नहीं? इज इट और नॉट? इन 4 के अलावा कोई 5वीं पॉसिबिलिटी आपको नजर आती है? नो सर। नहीं। तो ये पॉसिबिलिटीज है, इसमें से हर पॉसिबिलिटी के कॉरस्पॉन्डिंग में एक स्टेट बना लेता हूं। पहली पॉसिबिलिटी मेरी क्या है? ई, इवन इवन। सो आई एम मेकिंग ए स्टेट ई, सो इट इज इवन। Similarly, I make another state EO, even odd, even odd. Similarly, I make another possibility OE, odd, even. Okay, so odd, even. Last possibility is odd. So I am writing odd. So 4 स्टेट मेरी बन गई। अब इन चारों स्टेट, यानी कि मेरे जितने भी स्ट्रिंग होंगे, इन 4 में से किसी एक स्टेट पे जाकर के एंड करेंगे, डिपेंडिंग ऑन कि उसमें नंबर ऑफ एज इवन है या ऑड है, नंबर ऑफ बीज इवन है या ऑड है। अगर नंबर ऑफ एज इवन होंगे तो या तो इस वाली स्टेट पर रहेगा, क्योंकि पहला फैक्टर इसमें क्या है? ई, या फिर इस वाली स्टेट पर रहेगा। ठीक है। इसी तरह से नंबर ऑफ बीज अगर इवन होंगे तो या तो इस वाली स्टेट पर रहेगा, क्योंकि सेकंड फैक्टर ई है यहाँ पे, या फिर इस वाली स्टेट पर रहेगा, क्योंकि सेकंड फैक्टर ई है यहाँ पे। इज इट? सिमिलरली हम देख लेंगे कि नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज इवन है या ऑड है। तो यहाँ जो पहला लेटर है हमारा, वो नंबर ऑफ एज को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा लेटर क्या है? नंबर ऑफ बीज को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें सबसे बड़ी बात कि आपकी फाइनल स्टेट कौन सी होगी। लैंग्वेज हमें क्या कहती है? वर्ड W कंटेन्स इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीज। तो कौन सी स्टेट फाइनल स्टेट होगी? ई, इवन, दिस विल बी द फाइनल स्टेट। कौन सी स्टेट स्टार्ट स्टेट होगी? कौन सी स्टेट स्टार्ट स्टेट होगी? Even. यस, दिस विल बी द स्टार्ट स्टेट एज वेल। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया, ये देखने के लिए हमेशा आपको क्या देखना है? व्हेन यू हैवंट रेड एनीथिंग फ्रॉम दी वर्ड, आपने वर्ड में से कुछ भी रीड नहीं किया, यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग है आपके पास। अगर एम्प्टी स्ट्रिंग होगा तो उसमें नंबर ऑफ एज कितने हैं? 0। नंबर ऑफ बीज कितने हैं? 0। और दोनों 0 को हम क्या मानते हैं? इवन। सो नंबर ऑफ एज भी इवन है और नंबर ऑफ बीज भी इवन है। सो दैट्स व्हाई इवन विल बी द स्टार्टिंग स्टेट एज वेल। ओके, अब मैं स्टार्ट स्टेट से शुरू करूंगा। अब मैं अगर एक ए रीड करता हूं तो मुझे कौन सी स्टेट पे जाना चाहिए? अगर मैं एक ए रीड करता हूं तो देखिए मेरे पास नंबर ऑफ इस स्टेट में होने का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एज भी इवन है, नंबर ऑफ बीज भी इवन है। अब अगर एक ए रीड करता हूं कि नंबर ऑफ बीज इवन से ऑड हो जाएंगे ना, नंबर ऑफ बीज तो इवन ही रहेंगे ना, और नंबर ऑफ एज इवन से क्या हो जाएंगे? ऑड हो जाएंगे। इज इट और नॉट? यस सर। सो ओ ई पे आ जाएंगे। ओ ई पे आ जाएंगे। यस, सो ऑन ए आई विल बी मूविंग टू ओ ई। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैं यस ई सर। स्टेट में था, अब मैंने ए रीड किया तो ए तो इवन से क्या हो गया? ऑड। सो यानी पहला लेटर क्या हो जाएगा? ओ। नंबर ऑफ बीस पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि ए रीड किया मैंने, बी तो रीड किया नहीं। सो बी पहले भी इवन थे, अब भी इवन रहेंगे। तो मेरी नई स्टेट क्या बनी? ओ ई। सो आई विल मूव टू स्टेट ओ ई। इज इट? सिमिलरली इफ आई रीड ए बी हेयर, तो मुझे कहां जाऊंगा मैं? नंबर ऑफ एज पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इवन थे ऑड, पहले, अब भी इवन रहेंगे। नंबर ऑफ बीज इवन से क्या हो जाएंगे? ऑड हो जाएंगे। सो कौन सी स्टेट बनी? ई ओ। EO. So on B I will be moving on EO. अब देखिए इस स्टेट के दोनों ट्रांजिशन मैंने कंप्लीट कर लिए, A पर भी, B पर भी। सिमिलरली आई विल कंप्लीट ऑल द ट्रांजिशंस। अब मैं एज्यूम करता हूँ, सपोज मैं OE पे हूँ, यानी कि नंबर ऑफ एज ऑड है और नंबर ऑफ बीज इवन है। अब अगर यहाँ से मैं एक A रीड करता हूँ तो नंबर ऑफ बीज तो पहले भी इवन थे, अब भी इवन रहेंगे, वो फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन नंबर ऑफ ए यहाँ पे ऑड था, एक ए रीड करके क्या हो जाएगा? इवन। सो मैं कहाँ जाऊंगा? वापस आई विल गो बैक टू दी इवन स्टेट। इज इट और नॉट? सिमिलरली अगर मेरे को यहां से एक बी मिलता है तो देखिए ए तो मेरे ऑड थे, अब भी ऑड ही रहेंगे, क्योंकि ए मैंने रीड ही नहीं किया है। बी रीड किया, बी इवन से क्या हो जाएगा? ऑड। तो मेरी स्टेट क्या बनेगी? ऑड ऑड। सो ऑन बी आई विल बी मूविंग टू ऑड ऑड। इज इट?
Similarly, if I am on EO, यानी number of A is even, number of B is odd. अब अगर मुझे यहाँ से एक A मिलता है तो नंबर ऑफ एज इवन थे, इवन से क्या हो जाएंगे ऑड, बी पे तो फर्क पड़ेगा नहीं. सो ऑन रीडिंग ए आई विल बी मूव टू ओ ओ. अगर मेरे को एक बी मिलता है, अगर मेरे को एक बी मिलता है तो नंबर ऑफ एज तो इवन थे, इवन ही रहेंगे, नंबर ऑफ बीज ऑड से इवन हो जाएंगे. सो मेरी स्टेट कौन सी बनेगी, इवन इवन. सो ऑन बी आई विल बी गोइंग बैक टू इवन इवन स्टेट. सिमिलरली फॉर द ऑड ऑड स्टेट, अगर मेरे को एक ए मिलता है तो नंबर ऑफ एज ऑड से क्या हो जाएंगे, इवन. बी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो स्टेट कौन सी बनेगी, इवन ऑड. ओके, सो ऑन ए आई विल बी गोइंग बैक हियर. ऑन बी सिमिलरली आई विल बी मूविंग बैक हियर. I hope it is clear to everyone. So this will be the affair. I have completed transitions for all these states. Is it? अब इसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको बन सकती हैं. इसी प्रॉब्लम में वो कहे आपको ऐसे वर्ड्स W एक्सेप्ट कराने हैं जिसमें नंबर ऑफ एज ऑड हो और नंबर ऑफ बीज इवन हो. नंबर ऑफ एज ऑड और नंबर ऑफ बीज इवन. तो क्या होगा, देखिए डिजाइन यही बनेगा बट फाइनल स्टेट बदल जाएगी. फाइनल स्टेट अब ई की जगह क्या हो जाएगी, ओ ई हो जाएगी, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ एज ऑड और नंबर ऑफ बीज इवन. इज इट क्लियर है? इसी तरह से वो कहे कि नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज दोनों ऑड चाहिए. सो ओ ओ विल बिकम द फाइनल स्टेट. सो वही डिजाइन सारा यही बनेगा, केवल फाइनल स्टेट बदलेगी एंड यू कैन मेक द डिजाइन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. इज इट ओके, क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Okay, Yes, so sir. now we are moving to the next problem. This is the last problem which I am going to discuss today. FA that accepts all words that do not contain any triple or more simultaneous B's. पहले लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, लैंग्वेज समझ में आई. ए और बी पे बनने वाले वो सारे वर्ड्स इस पे एक्सेप्टेड हैं जिसमें दो या दो से कम साइमल्टेनियस बीज आते हैं. यानी 3 बी अगर कंटिन्यूएशन में आ गए तो मेरा वर्ड रिजेक्ट हो जाएगा. और 3 बी पे रिजेक्ट होगा तो अगर 4 बी होंगे तो उस पर भी रिजेक्ट होगा, 5 बी होंगे तो उस पर भी रिजेक्ट होगा. मीन्स कहीं भी मेरे 3 बी कंटिन्यूएशन में आ गए तो मेरा वर्ड क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा. इसके अलावा सारे वर्ड एक्सेप्ट होंगे. इज इट? प्रॉब्लम क्लियर है? मीनिंग देयर बाई, इफ माई वर्ड इज सपोज ए बी ए, दिस विल बी एक्सेप्टेड. बट कहीं पे मेरा अगर ए बी बी जैसे ही आया, आगे कुछ भी आता है, दिस इज गोइंग टू बी रिजेक्टेड. इज इट? सो दिस इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेड, दिस इज गोइंग टू बी रिजेक्टेड. क्योंकि यहाँ बी एक बार आया या 2 बार आया कंटिन्यूएशन में, 2 बार तक कंटिन्यूएशन में आया कोई दिक्कत नहीं है. इज इट? या तो बी हुई ना, या फिर बी एक ही बार आए कंटिन्यूएशन में, या बी मैक्सिमम 2 बार आए कंटिन्यूएशन में. ठीक है, तो वो सारे वर्ड एक्सेप्ट होंगे. लेकिन जहां भी 3 बार कंटिन्यूएशन में आ गया भी आपका, वो वर्ड क्या होंगे, रिजेक्ट होंगे. इज इट क्लियर? Yes, sir. अब मुझे इसका एफ ए बनाना है. अब मुझे क्या बनाना है, इसका एफ ए बनाना है. अगर मुझे इसका एफ ए बनाना है तो अब डायरेक्ट बनाने में मुझे डिफिकल्टी होगी. अब अगर मैं ये कहूं कि मैं इसका एफ ए ना बना करके मैं किसका एफ ए बनाता हूं, इसकी कॉम्प्लीमेंट लैंग्वेज का एफ ए बनाता हूं. इसकी कॉम्प्लीमेंट लैंग्वेज का एफ ए बनाता हूं. इसकी कॉम्प्लीमेंट लैंग्वेज क्या होगी, ये लैंग्वेज क्या कह रही है, दैट डू नॉट कंटेन एनी ट्रिपल बी इन दैम. अब मैं अगर इसका एफ ए बना दूं, दैट कंटेन्स ए ट्रिपल बी इन दैम, दैट कंटेन एटलीस्ट 1 ट्रिपल बी इन दैम. इज इट? तो इट विल बी द कॉम्प्लीमेंट. अगर मुझे एक ट्रिपल बी चाहिए सक्सेस के लिए तो मैंने क्या किया, इसकी जो कॉम्प्लीमेंट लैंग्वेज है वो क्या है, कंटेनिंग सॉरी, जस्ट 1 मिनट. Just 1 minute, my panel is not working correctly. Just
just you hold for 1 minute. Okay, so its complement language will be a language which contains at least one triple B. Okay, so the FA corresponding to it, if I will be making, so I will make it through the success path. So there will be a start state, and for success what I need a triple B. Okay, so I need a triple B. So single B will lead me here, 2 continuous B will lead me here, and 3 continuous B's will lead me here, which is the success as well. Is it clear? और एक बार अगर मेरे को सक्सेस मिल गया, यानी कि 3 बी मिल गए, तो आगे कुछ भी आता रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सक्सेस मेरी रहेगी. इज इट? सो दैट्स व्हाई ऑन ए बी आई विल मेक ए सेल्फ लूप हियर. इज इट ओके? देन then I will complete the remaining transitions. So start state पे हूँ, अगर एक B मिला तो सक्सेस पाथ पे आगे बढ़ा, लेकिन अगर A मिला तो क्या करूँगा? A मिला तो यहीं पर स्टे करूँगा, वेट करूँगा जब तक मेरे को B नहीं मिले. क्यों? क्योंकि A मिलते रहे, बट जैसे ही मेरे को B मिलेगा आई कैन मूव ओवर दी सक्सेस पाथ. सो दैट्स व्हाई आई विल स्टे हियर. सो ऑन A आई विल सेल्फ लूप ऑन दी स्टार्ट स्टेट, ऑन B आई विल मूव टू दी सक्सेस पाथ. आई विल रीच टू दिस स्टेट. इफ आई एम at this particular state, so it simply means that I have just read one B. Okay, अगर अगला B मेरे को मिला तो मैं सक्सेस पाथ पे आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन अगर A मिला तो मुझे ये सक्सेस पाथ छोड़ना होगा. मैं यहाँ सक्सेस पाथ पे स्टे नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि मुझे 3 कंटिन्यूस बीज चाहिए, तो बीज के बीच में कुछ नहीं आ सकता. बीज के बीच में अगर कुछ और आ रहा है तो आई हैव टू लीव दैट. ओके, तो A पर मुझे इससे अवे जाना है. कहाँ जाना है? जहां से मैं वापस ट्रिपल बी ले सकूं, क्योंकि अब ये पहला वाला बी जो मैंने रीड किया था ये तो बेकार हो गया. अगर दूसरा बी मिलता तो मैं सक्सेस पाथ पे आगे बढ़ता, लेकिन ए मिलते ही जो पहला बी मैंने रीड किया ये बेकार हो गया. अब मुझे सक्सेस के लिए वापस 3 बी कंटिन्यूएशन में चाहिए. वापस 3 बी कंटिन्यूएशन में मुझे कहाँ से मिल रहा है? स्टार्ट स्टेट से. सो ऑन ए आई विल बी मूविंग बैक टू दी स्टार्ट स्टेट. इज इट? सो अब देखिए, मैंने इसके बी पर ट्रांजिशन था, ए पर ट्रांजिशन कंप्लीट कर लिया, इसका ए और बी कंप्लीट कर लिया. अब मैं इस स्टेट पे आता हूँ. इस स्टेट पे होने का मतलब क्या है? कि मुझे 2 कंटिन्यूस बीज मिल चुके हैं. तो ये पहला बी रीड करके यहाँ आया, इसे मैं कह देता हूँ 1. दूसरा बी रीड करके मैं यहाँ आया, यानी कि 2 कंटिन्यूस बीज मेरे को मिल चुके हैं. इज इट? अब अगर तीसरा बी मिला तो सक्सेस पे पहुंच गया, लेकिन अगर तीसरा बी नहीं मिला, उससे पहले ए मिल गया, तो पिछले वाले दोनों बी मेरे बेकार हो गए. अब मुझे सक्सेस के लिए अगर ए मिल गया एक बार, तो सक्सेस के लिए 3 बी वापस दोबारा से चाहिए. इज इट? तो सक्सेस 3 बी मुझे कहाँ से मिलेंगे? स्टार्ट स्टेट से. That's why on A I will be coming back to the start state. Is it? So अब इसका देखिए, मैंने A पर भी कंप्लीट कर लिया, B पर भी कंप्लीट कर लिया. ये A इस स्टेट का A और B में मुझे सेल्फ लूप लेना, क्योंकि एक बार सक्सेस मिली तो वो सक्सेस मेरी क्या है? फाइनल है. 3 B आ गए तो आ गए, उसको कोई मुझसे छीन नहीं सकता. इज इट? सो दैट्स वाई ये मेरा FA कंप्लीट हो गया. एंड दिस इज द FA corresponding to the language that contains at least one triple B. इसमें जब तक आपको ट्रिपल बी नहीं मिलेगा तब तक आप सक्सेस पे नहीं पहुंचेंगे. अब मुझे क्या चाहिए? मुझे इसकी उल्टी लैंग्वेज चाहिए, कॉम्प्लीमेंट चाहिए, कि मुझे 3 बी पर तो फेलियोर हो, बाकी सब कुछ सक्सेसफुल है. तो मैंने कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या बताया था? जितनी भी नॉन फाइनल स्टेट्स हैं वो सब क्या बन जाएंगी? फाइनल स्टेट्स बन जाएंगी. और जो भी फाइनल स्टेट है वो क्या बन जाएगी? नॉन फाइनल स्टेट बन जाएगी. सो आई एम चेंजिंग द कलर ऑफ पेन एंड देन आई एम ड्राइंग इट. जस्ट क्या प्रॉब्लम है, ये चेंज क्यों हो रहा है? जस्ट ओके, ग्रीन कलर ले लेते हैं. ओके, सो अब देखिए, मैंने आपको बताया अगर मुझे इस लैंग्वेज के कॉरस्पॉन्डिंग बनाना है तो मेरी जो भी स्टार्ट स्टेट वो सब वैसे ही रहेगा. ये देखिए नॉन फाइनल स्टेट थी, ये क्या बन जाएगी? फाइनल स्टेट बन जाएगी. ये वाली स्टेट क्या है? नॉन फाइनल स्टेट थी, ये फाइनल स्टेट बन जाएगी. ये वाली स्टेट क्या थी? नॉन फाइनल स्टेट थी, ये फाइनल स्टेट बन जाएगी. इज इट? और ये जो मेरी स्टेट फाइनल स्टेट थी, ये मेरी क्या बन जाएगी? नॉन फाइनल स्टेट.
यानी कि ये प्लस यहाँ से खत्म हो जाएगा, इज इट? तो यानी कि मेरा नया डिजाइन क्या बनेगा, अगर मैं यहाँ देखूँ, स्टार्ट स्टेट एज वेल एज फाइनल स्टेट. ओवर ए आई विल स्टे हियर, on B I will move to the state which is also the final state, is it? On the second B I will move to another state which is also the final state. On third B I will move to a state which is a non-final state and its transition are AB. So basically it is a tail state. Okay, on A I am coming back here and on A I am coming back here, is it? So this will be the final FA which is for the language that do not contain any triple or more simultaneously. अब आप चेक करके देख लीजिए वो सारे वर्ड जिनमें या तो कोई भी नहीं है, तो ये है तो वो यहीं पे ही मूव करता रहेगा, और ये फाइनल स्टेट है तो वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा. यानी एप्सिलॉन और जितने भी स्ट्रिंग जिनमें बीज है ही नहीं वो सब यहाँ फाइनल, इस फाइनल स्टेट पे एक्सेप्ट हो जाएंगे. जिनमें एक भी आया है तो एक भी कितनी भी बार आया हो तो वो यहाँ जा करके एंड करेगा. फिर सपोज ए आ गया, फिर एक भी आ गया, फिर ए आ गया, फिर कुछ और एज आ गए, फिर एक भी आ गया, जहां भी एक सिंगल भी है वो सारे स्ट्रिंग इस पर एंड करेंगे. और जिसमें भी एक बार डबल भी आ गया, जिसमें भी एक क्या आ गया, डबल भी आ गया, वो डबल बी वाला यहाँ पे आपका जो है एंड करेगा. लेकिन अगर ट्रिपल भी आया तो आप इस स्टेट पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद आगे ए या बी कुछ भी आए आप कभी भी वापस नहीं आएंगे. तो यानी कि हमेशा वो स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, आपका रिजेक्ट हो जाएगा. तो 3 बीज या उससे आगे कुछ भी आता है वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा. सो दिस विल बी द करेक्ट एफ. इससे हमें एक चीज और समझ में आती है कि अगर इन जनरल कभी मेरे पास प्रॉब्लम ऐसी दैट डू नॉट कंटेन, निगेटिव लैंग्वेज है, दैट मैं कहता हूँ कंटेन नहीं, कंटेन वाली तो हम सिंपल बना सकते हैं सीधे जैसे ये बनाया. डू नॉट कंटेन आता है तो हम क्या करें, उसका उल्टा कर लें, सिंपल वाली लैंग्वेज बनाएं और उसके बाद फाइनल स्टेट्स और नॉन फाइनल स्टेट्स को स्विच करके अपना करेक्ट एफ हम डिजाइन कर सकते हैं. सो दिस वाज द लास्ट वन. सो दिस इज बेसिकली द यूज ऑफ दैट कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया था. कॉम्प्लीमेंट लैंग्वेजेस के जो एफ हैं वो डिजाइन सेम होता है, केवल उसमें फाइनल और नॉन फाइनल स्टेट्स का डिफरेंस होता है. So this was all which I wanted to discuss from my side. If you have any question, you can ask. Class, is there any question or any doubt? Someone unmute your mic and respond me if there is any doubt. Otherwise, I will close and No, then sir. you can. Okay. No, sir. Okay. So now I'm closing at this point of time, and this was all which I wanted to discuss in the design of FAs. Now I will probably आप लोग प्रैक्टिस कर भी रहे होंगे, और नहीं किए तो आप इसको तेजी से प्रैक्टिस कर लीजिए. और जिसके जो भी डाउट है कल 5 बजे जो है या 4 बजे मैं आपको इस पे एक सेशन का लिंक बना करके शेयर कर दूंगा एज पर माई अवेलेबिलिटी. ठीक है, तो जिनके भी डाउट्स हैं और जो मुझसे क्वेश्चन. यस सर, Yes. इसकी आरई एक्सप्रेशन क्या होगी? Okay, Regular that I have left. Okay, so I will complete this. Okay, तो मैं कल वाले सेशन में जो है का लिंक, कल वाले सेशन का जो क्लास क्रिएट करके आपको शेयर कर दूंगा. तो जिसके भी डाउट हो और जो पूछना चाहे वो उसको ज्वाइन कर सकता है. जैसे मैंने आपको बताया कि कल वाला सेशन अटेंड करना कंपलसरी नहीं है. जिसके डाउट हो, जो सुनना चाहता है वो है, क्योंकि उसकी अटेंडेंस नहीं होगी. इज इट? उसकी अटेंडेंस नहीं होगी, ये केवल आपके प्रैक्टिस के लिए. तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए और अपने डाउट्स जो है क्लियर कर लीजिए. So one thing we have left here, that is the regular expression corresponding to this particular FA. Again, the regular expression for this particular FA is a bit tricky. It is, I am first writing the regular expression. देखिए इसमें क्या है, एक बी अलाउड है, 2 कंटिन्यूस बीज अलाउड हैं, 3 कंटिन्यूस बीज अलाउड नहीं है. यानी कि हमें कहीं ना कहीं ये इंश्योर करना पड़ेगा कि अगर मेरा एक बी आया तो उसके बाद ए जरूर आ जाए, या कहीं पे 2 कंटिन्यूस बीज आ गए तो उसके बाद एक ए जरूर आ जाए, ताकि कहीं भी तीसरा बी आने की पॉसिबिलिटी ना हो. सो आई एम राइटिंग एन पर्टिकुलर एक्सप्रेशन ए प्लस, यानी कि मेरे स्ट्रिंग में या तो केवल एज हो, बी है ही नहीं. ओके, या फिर एक बी है, लेकिन अगर वो एक बी है तो उसके बाद एक ए जरूर आता है. सो दैट्स व्हाई आई विल राइट बी ए. सिमिलरली 2 बी भी अलाउड है, 2 कंटिन्यूस बी भी अलाउड है, बट वो 2 कंटिन्यूस बीज अगर आ गए तो उसके बाद एक ए जरूर आ जाए. यानी कि 3 फैक्टर से मिलकर के मेरा वर्ड बना हुआ होना चाहिए. सो
I will make a asterisk here. Is it clear or not? Will it work or not? Just check. Suppose your string is made up of only a's. आप इनमें से किसी भी एक फैक्टर से किसी भी फैक्टर से मिलकर के बना सकते हैं. स्टार के लिए आप कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए, कितनी भी बार आप a ले सकते हैं तो उसमें b कोई आएगा ही नहीं. सो द वर्ड ऑफ ओनली a's वेयर नो b इज प्रेजेंट विल बी एक्सेप्टेड. ओके. अब अगर आप बी वाला फैक्टर लेते हैं तो एक बी आएगा, बट उसके बाद एक ए आ गया, तो अब आगे कुछ भी आए, चाहे आप ए लें तो भी ए है, और ये डबल बी ले लें यानी कि एक बी आ जाए बट बीच में एक ए आ गया, तो कभी भी ये दो बी और ये एक बी आपस में मैच नहीं कर सकते, मिक्स नहीं हो सकते. तो तीन बीज की पॉसिबिलिटी नहीं. सिमिलरली अगर मैंने कहीं पे फैक्टर डबल बी ए लिया तो दो बी तो कंटिन्यूस आ गए, मगर उसके बाद एक ए मेरा इंश्योर हो गया. इसके बाद मैं चाहे बी ए वाला फैक्टर लूँ चाहे ए वाला फैक्टर लूँ, ये श्योर है कि वो इन बीज के साथ मिक्स नहीं होगा कहीं पर भी. सो इस तरह से मैंने ये इंश्योर किया कि मेरे कहीं भी तीन कंटिन्यूस बीज नहीं आते हैं. इतना क्लियर है कि नहीं है, ये बताइए. यस सर. ओके. लेकिन इसमें कुछ वर्ड्स रह रहे हैं अभी भी. आप इसमें अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे ए है. अगर ये फैक्टर लूँ मैं लास्ट, सपोज स्टार की वैल्यू मेरी 5 है, तो शुरू के 4 के लिए मैंने कुछ भी लिया कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 5वें के लिए अगर मैंने ये वाला फैक्टर लिया तो मेरा वर्ड किससे एंड होगा? ए से एंड होगा. अगर मैंने ये वाला फैक्टर लिया तब भी मेरा वर्ड किससे एंड होगा? ए से ही एंड होगा. अगर मैंने ये वाला फैक्टर लिया तब भी मेरा वर्ड किससे एंड होगा? ए से ही एंड होगा. यानी मेरा वर्ड हमेशा ए से एंड करना, जबकि ऐसा जरूरी तो नहीं है. मान लीजिए मेरा वर्ड है, सपोज मैं कहता हूँ ए बी, सो दिस शुड बी ए वर्ड इन दिस लैंग्वेज, क्योंकि इसमें ट्रिपल या उससे ज़्यादा बी नहीं आए हैं. ए बी तो एक्सेप्ट होगा, इवन ए डबल बी है तो भी एक्सेप्ट होगा. ये वर्ड इससे कहीं भी जनरेट नहीं हो सकता. ये वर्ड इससे कहीं भी जनरेट नहीं हो सकता. इज इट क्लियर? तो इसे मुझे ऐड करने के लिए आई एम एडिंग समथिंग दैट इज नल प्लस बी प्लस डबल बी. यानी कि अगर मेरे वर्ड ए से एंड हो रहे हैं तो जो भी मेरा वर्ड बनाया वो मैंने इससे बना लिया, और इधर की तरफ से मैंने इन तीनों में से कोई एक फैक्टर ले सकता हूँ. मैंने क्या लिया? एप्सिलॉन ले लिया या नल स्ट्रिंग ले लिया, तो मेरा वर्ड ए से एंड कर रहा है, यानी वो सारे वर्ड एक्सेप्ट हो जाएंगे. अगर मेरा वर्ड सिंगल बी से एंड करना है तो उससे पहले का वर्ड मैंने किससे बनाया? इससे बना लिया, पहली वाली एक्सप्रेशन से. और इस वाले में से तीनों में से कौन सा फैक्टर ले लिया? बी वाला फैक्टर ले लिया. तो मेरे वर्ड किससे एंड हो जाएगा? बी से एंड हो जाएगा. सिमिलरली अगर मुझे डबल बी से एंड करना है, ओके, सो among these three I will take this factor and my word will end with double b. So this will be the regular expression for this particular fa. अब जैसे ये a डबल बी था, ये जनरेट करना है, तो आप क्या करेंगे? इस स्टार की वैल्यू लेंगे 1, इसमें से क्या जनरेट करेंगे? a. उसके बाद आपको डबल बी चाहिए तो आप इस वाले फैक्टर में से क्या लेंगे? डबल बी. सो आपका क्या जनरेट हो जाएगा? a डबल बी जनरेट हो जाएगा. इसी तरह से कोई भी वर्ड आप लीजिए, एज्यूम कर लीजिए कोई भी एक जनरल वर्ड, जैसे मैं कहता हूँ ए बी बी ए बी ए बी, सपोज लाइक दिस. ये वर्ड मेरे को जनरेट करना है, ठीक है. तो अगर ये वर्ड मेरे को जनरेट करना है तो ऑब्वियस सी बात, चूंकि बी से एंड हो रहा है तो मुझे इस लास्ट वाले फैक्टर में से क्या चाहिए? बी चाहिए. तो इसको तो मैं अलग कर लेता हूँ, ठीक है. बाकी सारा का सारा वर्ड मैं किससे जनरेट करता हूँ? इस वाली एक्सप्रेशन में जनरेट करता हूँ. अब इसमें क्या है, मैं इसके फैक्टर्स देख लेता हूँ. देखिए, एक फैक्टर ए आ गया, ओके, दूसरा फैक्टर डबल बी ए आ गया, तीसरा फैक्टर ए बी आ गया, तीसरा फैक्टर आपका आ गया ट्रिपल ए, यानी कि 3 बार, 1 2 3 बार ए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 टाइम्स. तो आप इस स्टार की वैल्यू क्या लीजिए? 6 लीजिए. ओके, स्टार की वैल्यू 6 ली. जब स्टार की वैल्यू 1 है तो इन सारे फैक्टर्स में से आपने क्या चूज किया? ए चूज किया. जब स्टार की वैल्यू यानी 2 यानी कि अगला ऑप्शन आया आपका, तो आपने उसमें से क्या किया? इन तीनों में से डबल बी ए ये वाला ऑप्शन चूज किया. फिर तीसरी बार आपने क्या चूज किया? आपने ओके जस्ट 1 मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया. डबल बी ए आया था, उसके बाद ये सिंगल ए आएगा, देन बी ए आएगा, और उसके बाद डबल ए आएगा. ओके, तो उसके बाद मैंने तीसरी बार क्या किया? केवल ये ए चूज किया, तो मेरा ये वाला फैक्टर जनरेट हो गया. अगली बार मैंने क्या? चौथी बार के लिए बी ए चूज किया, तो ये वाला फैक्टर जनरेट हो गया, बी ए. पांचवी बार ये वाला ये जनरेट हुआ, छठी बार ये वाला ये जनरेट हुआ. इस तरह से ये सारा वर्ड जनरेट हो गया, और बाकी लास्ट वर्ड मैंने किससे जनरेट किया? इस वाले से, सिंगल बी.
ओके यही अगर मेरा लास्ट वाला ये बी नहीं होता, केवल इतना ही होता, तो मैं क्या करता, इस स्टार की जगह वही 6 लेता, उसी तरह से जनरेट करता, लेकिन लास्ट वाले फैक्टर में से एप्सिलॉन ले लेता, तो मैं इस तरह से जनरेट कर सकता था. तो एनी वर्ड which is part of this language can be generated through this. Okay, is that clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now you complete the design of FA's questions which I have given you in your question bank. उसमें जो भी डिफिकल्टी है उनको लिस्ट आउट करके रख लीजिए. कल का जो सेशन होगा मैं उसमें आप सभी को भी प्रेजेंटर बना दूंगा, तो आप अपनी जो भी डिफिकल्टीज हैं वो मुझे उस पर लिख करके भी बता सकते हैं. तो यू कैन प्रेजेंट एंड यू कैन राइट योर डिफिकल्टीज, और मैं जो है उसको कंप्लीट करके बता दूंगा. नहीं तो जो उसका क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर है उससे आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आपको जो है क्वेश्चन के साथ उसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा, किस तरह से उसको अप्रोच कर सकते हैं, वो डिस्कस कर लेंगे. ओके, सो थैंक यू ऑल. आई एम क्लोजिंग नाउ. Thank you, sir. थैंक यू एवरीवन.